Inference about two population variances. Inference is about two population variances. In yesterday's lecture, we discussed inference about one population variance, and we did confidence interval for them and then hypothesis testing for them. So today we are discussing inferences about two population variances. यानी दो population variance अगर हमारे पास है तो उनके लिए हम inference किस तरह से करेंगे, and we will only be discussing hypothesis testing for this. Hypothesis testing. और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी दो केसेस आपके पास होंगे. इसके अंदर मेनली एक अपर टेल टेस्ट होगा और दूसरा टू टेल टेस्ट होगा. टू टेल टेस्ट. स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं वेरिएंसेस को प्रोडक्ट की क्वालिटीज के अंदर, जो कि दो डिफरेंट वेरिएंसेस, दो डिफरेंट प्रोसेसेस, पॉपुलेशन प्रोसेसेस से आ रही हूँ. अगर आपके पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो उन दोनों की वेरिएंसेस के बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या उन दोनों के बारे में आप जानने की कोशिश कर सकते हैं. मेनली यू वांट टू कंपेयर देम. So the variance in assembly times for two assembly methods, यानी असेंबल कर रहे हैं आप चीजों को दो मेथड से, एक मेथड से आप असेंबल कर रहे हैं और दूसरे से भी, तो दोनों की आप पॉपुलेशन वेरिएंस आपस में कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल the variance is an assembly times for two assembly methods. या आपके पास variances in temperatures for two heating devices. The variances for two, the variances in temperature for two heating devices. या इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप के पास दो बस सर्विसेज हैं, दो डिफरेंट कंपनीज थी, उनकी वेरिएंसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं. डाइव और फैसल मूवर हैं, उन दोनों की अलग अलग वेरिएंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, यानी उनके अराइवल टाइम्स के अंदर, यानी किसके अंदर ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस है. तो इस तरह से इन चीजों को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं. लाइक यू कैन कंपेयर दिस सच काइंड ऑफ वेरिएंसेस. सो let's take, for example, we take n1 from population 1, यानी दो population variance हैं तो आपके पास दो population होंगी. Let's take n1 is a sample from population 1, and let's say n2 is a sample from population 2. So if we take n1 from population 1 and n2 from population 2, then definitely we can call S1 square as sample variance for population 1, and we can call this as 2s sub 2 square to be the sample variance for population 2, sample variance for population 2. Then we have a result, so what does result says?
Let me tell you, there is a standard result regarding this. So it says sampling distribution of S1 over S2, यानी S1 is the sample variance for population 1, S1 square, divide by S2 square. ये आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी. This is, you can say that the ratio of variances for two population variances, two sample population variances. तो ये जो रेशियो है इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नीचे वाला रिजल्ट बात करता है. क्योंकि हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन वेरिएंसेस का, तो इसके लिए हमारे पास जो सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंसेस है दे आर इंपॉर्टेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देयर रेशियो. सो S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में बराबर है तो उस वक्त इनकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में ये रिजल्ट आपको बताता है कि whenever independent sample random samples of size n1 and size n2 are selected from two normal populations with equal variances, the sampling distribution of S1 square over S2 square is an F distribution with n minus 1 degrees of freedom for numerator for this and n2 minus 1 degrees of freedom for denominator, yani for this. Is S1 square is the sample variance for random sample of n1 atoms from population 1 and S2 square is the sample variance for the random sample of n2 atom from population 2. So simple words में ये कह रहा है कि अगर sigma 1 square और sigma 2 square आपस में बराबर हैं और आप जो है वो जो आप sample ले रहे हैं वो samples जो हैं are from normally distributed population, देन आपके पास जो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये F डिस्ट्रीब्यूशन है और F डिस्ट्रीब्यूशन विद with n1 minus 1 degree of freedom for S1 स्क्वायर, इसको df1 कर देता हूं मैं. n2 minus 1 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है df2 फॉर सेकंड सैंपल. तो अब बात आ जाती है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है. तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, थोड़ा सा वी विल डिस्कस इट मोर कि ये जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये होती क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दिस अ बिट. सो व्हाट्स एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा तो आगे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास जो है वो चीजों को कंप्यूट करना आसान हो जाएगा. सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमेट्रिक नहीं होती. इट इज नॉट सिमेट्रिक, but maybe you can say that it's right skewed. F is like it is, ये जो आपकी F डिस्ट्रीब्यूशन है it's not negative, यानी इसका जो प्लॉट होगा वो हमेशा ये जीरो से इस साइड होगा.
somehow you राइट स्क्यूड होने की वजह से आई एम मेकिंग इट दैट वे। और इसकी जो शेप है, शेप डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ df1 of numerator and degree of freedom df2 of denominator। यानी इसकी जो शेप है वो डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। Let's try to have some plots online. Uh, let's see some of the plots by varying the degrees of freedom. Let me try to give you a demonstration. Okay, we are here. अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आपके पास न्यू वन और न्यू टू है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एक न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दूसरी डिनोमिनेटर की। लेट्स से दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 कर देते हैं। So we have nothing to see. Let's increase this 5. Let me take that as a 5. So जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 है और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 है, तो आपके पास जो शेप है वो इस तरह से, इट्स लाइक हाईली राइट स्क्यूड। अगर आप इसको बढ़ाते हैं, न्यू वन को 10 कर देते हैं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको लेट्स से 8 रख देते हैं, देन यू हैव दिस शेप। अगर न्यू वन को और बढ़ाते हैं, लेट्स से 15 कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, 13 कर देते हैं, देन योर शेप इज दिस। और अगर आप इसको 20 कर देते हैं और इसको आप लेट्स से 15 कर देते हैं, तो आपकी शेप ये है। यानी न्यू टू को भी अगर लेट्स से 20 कर दे, आपकी शेप ये है। ओके, सो लेट्स इंक्रीज दिस मोर, 30 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं। है राइट स्क्यूडी, लेकिन ये जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, एक चीज थोड़ी सी फील हो रही है कि इट्स लाइक going close to normal, but we will not do that. Like we will not say that it's normal, but we will be using it as, as its own, table we have. So let's take this 40 and let's take this 35. So that's the shape here. So जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ाएंगे तो आपके पास ये जो शेप है ये बढ़ती जाएगी, यानी चेंज होती जाएगी। लेट्स टेक दिस एज 50, लेट्स टेक दिस एज 90. So this is how the shape will be, varying itself. So that's the F distribution. So अब वही सवाल है जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो उसमें भी हम कुछ वर्ड्स का मतलब देख रहे थे। जैसे हमने कहा था, जब हमारे पास Z डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z अल्फा। टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हम कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी अल्फा। एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन थी, हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काई स्क्वायर, काई स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो अब हमारा ये है मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ सब अल्फा, यानी इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो सिंपल बात है। सो वी वांट टू सी द मीनिंग ऑफ एफ अल्फा। तो ये एफ अल्फा का जो मतलब होगा वो बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। ये एफ अल्फा का मतलब है कि यू वांट टू सी, ये आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज फॉर द मोमेंट ये आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको एक वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक एफ वैल्यू चाहिए जिसके राइट पे जो एरिया है वो अल्फा के बराबर है। लाइक दिस एरिया, ये जो एरिया ऑन द राइट साइड है ये अल्फा के बराबर होना चाहिए। सो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी एफ
की एक्स एक्सिस के ऊपर जो एफ की वैल्यू आएगी, जिसकी राइट पर यानी यहाँ पर कोई वैल्यू होगी अल्फा, उसको नाम दे देंगे एफ अल्फा। इसका मतलब है, एफ अल्फा का मतलब है कि इस पॉइंट के राइट पर ये जो एरिया है ये अल्फा के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ 0.05, तो इसका मतलब है कि यू हैव अ प्लॉट और एफ, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है समाउ, और यू कैन से दैट यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है एफ 0.05 की। वो वैल्यू क्या है, वो टेबल से मिलेगी, जिसके राइट पर जो एरिया है हमारा, यानी दिस एरिया, ये एरिया हमारा जो है ये 0.05 के बराबर है। यानी वी हैव सम वैल्यू जिसके राइट पर हमारा ये जो एरिया है ये 0.05 के बराबर है। तो एफ 0.05 का मतलब है कि इसके राइट पर एरिया जो है वो 0.0 के बराबर है। यानी इसका मतलब कि एफ 0.05 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एफ ग्रेटर देन एफ 0.0 अल्फा, या इक्वल भी कर दें फर्क नहीं पड़ता, इज 0.05। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर द अपर केस यू कैन से दैट एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। यानी इसका मतलब है कि आपके अपर टेल के अंदर जो है वो एरिया अल्फा के बराबर है। तो एफ अल्फा का मतलब होगा, आज के बाद जब मैं बात करूंगा एफ अल्फा, तो इसका मतलब एक एफ की वैल्यू है जिसके जिसका अपर टेल में एरिया जो है वो अल्फा के बराबर है। सो एफ अल्फा, सो द एफ अल्फा इज value of f such that and its upper tail the area is alpha, the area is equal to alpha। या आप ऐसे कह सकते हैं कि probability of having f is greater than this f alpha। सो इसको सवाल अब ये है कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड करें, f 0.05 फॉर एग्जांपल, ये कैसे फाइंड की जाए। तो इसके लिए आपके पास टेबल की जरूरत है, लेकिन जो टेबल यूज करेंगे वो टेबल आपसे रिक्वायर करेगा कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो लेट मी से दैट यू नो फॉर एग्जांपल मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर की भी देता हूँ, न्यूमरेटर की भी देता हूँ, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चले, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 यानी न्यूमरेटर की डिग्री है, ये न्यूमरेटर ये है 20, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिनोमिनेटर की वो भी आपकी इक्वल टू 20 है। तो अब मुझे बताएं कि अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर भी 20 है, डिनोमिनेटर भी 20 है, तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ 0.05। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द टेबल। दिस इज द टेबल, यू नो। सो ये टेबल है आपके पास। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की DF1 यानी डिनोमिनेटर की डिग्री, ये न्यूमरेटर की डिग्रीज हैं, ये 10, 15, 20, 25 या 30, ये आपकी न्यूमरेटर की डिग्रीज हैं। और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप चेक करेंगे, ये नीचे ये डिनोमिनेटर की डिग्रीज आ रही हैं 5, 15, 20, 25, 30। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड F 0.05। तो पहले तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की पिक करें, 20, 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, DF2, तो ये 20, ये भी 20। इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यूज है ना, दोनों के अंदर जो आ रही है, दीज वैल्यूज आर क्रूशियल, इनमें से कोई वैल्यू होगी। अब जब आप इसको देखते हैं एफ 0.05 को, तो आपको पता चलता है कि ये 0.05 आपका एरिया है, और ये एरिया आपको यहाँ पर गिवन है इस लाइन के अंदर। तो आप चेक करें कि 0.05 कहाँ पर है, ये आपका 0.05 है।
तो ये किस के सामने आ रहा है, तो दिस इज गोइंग हेयर, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.12। तो आपके पास जो वैल्यू होगी f of 0.05 is equal to 2.12. Let me इसका मतलब this is 2.12. We can check this on online, like the way we were doing. Okay, so let's take it on online. यहाँ पर दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2020 थी। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जिसके अपर टेल में एरिया जो है वो 0.05 है। तो ये 1.59 कैसे आ रहा है? ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट 20, बोथ 20। 0.05 एरिया के लिए ये आपके पास 2.12 आ रहा है एक्स की वैल्यू। दिस इज हियर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आई एम सेंडिंग द लिंक ऑफ दिस कैलकुलेटर एंड योर ग्रुप। अगर आप बाद में चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट सम मोर एग्जांपल्स जिनको हम अभी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अब न्यूमरेटर की जो है वो बराबर है 10 के, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर जो है वो बराबर है 20 के। देन आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.10। सो लेट्स चेक आउट इन द टेबल। ये आपके पास टेबल है। Okay. Degree of freedom for numerator is 10. Degree of freedom for denominator is 20. And I want to see this value 0.10. So सबसे पहले तो न्यूमरेटर की डिग्री चेक करते हैं, वो 10 के बराबर है, लाइक हियर। उसके बाद डिनोमिनेटर की डिग्री 20 है, लाइक दिस वन। सो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो है ना 20 और 10 वाली, ये वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज जिनमें से एक वैल्यू होगी। अब आ जाते हैं कि एरिया इन द अपर टेल क्या है, वो है 0.10, यानी 0.10 इज हेयर। सो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 1.94। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो now let's check it online. So the area was, यानी आपके पास जो न्यूमरेटर की डिग्री थी वो 10 थी और डिनोमिनेटर की 20 थी, एंड यू वांटेड टू सी 0.10। It's 1.94. So the answer that we have achieved was also 1.94. So like you can see that this is equal to this one. इसी तरीके से let me take another example. For example, I have degree of freedom for numerator is equal to 25 and degree of denominator is 20. So I want to see what is, okay, let's take this as 10. So I want to see what is f sub 0.025. ये क्या वैल्यू होगी? So let's again see the table. You can see this table नजर आ रहा है?
degree of freedom for numerator is 25 and degree of freedom for denominator is 10. So numerator की 25 है यानी ये वाली, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर वो हमारे पास है 10 यानी दिस वन. सो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं 20 और 10 वाली, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, लेकिन हमें एरिया चाहिए था 0.025 का. सो 0.025 इज हेयर. सो ये जो वैल्यू है 3.35, तो ये वैल्यू होगी 3.35. तो आपके पास, आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. वी कैन सी इट लेटर ऑनलाइन. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो 25 थी यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, और वी वांट टू सी द एरिया टू बी 0.025. तो ये हमारे पास 3.35 वैल्यू आ जाएगी, वही जो हमारे पास टेबल से आ रही है. So this is how you calculate, F distribution values. There, it's 3.35. F 0.025 is equal to 3.35. और ऊपर आपके पास ये जो वैल्यू थी, दिस वाज 1.94. This is all about something that we call F distribution. F distribution की वैल्यूज कैसे फाइंड की जाएंगी. और दूसरा, अगर आपके पास F वैल्यू हो तो फिर आपके पास एरिया भी मिला हुआ होगा, उसको भी हम बाद में देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे. लाइक फॉर दैट यू विल बी गिवन डायरेक्ट सिंपल चार्ट और सिंपल short kind of table of values. We will use it in the example, you will understand that. Okay, कोई सवाल है? The value present, sir. I didn't say. So we have next, so we will do an example. An example on hypothesis testing. Hypothesis testing for two population variances. अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हम थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को देखेंगे फॉर टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस. उसको कैसे किया जाएगा, और उसके दो एग्जांपल करेंगे, एक अपर टेल के लिए और दूसरा टू टेल के लिए. तो वी हैव गॉट फर्स्ट ये है कि हमारे पास दो ही टेस्ट होगी. एक अपर टेल टेस्ट होगा, यहाँ पर अपर टेल टेस्ट. अपर टेल टेस्ट के अंदर वही स्टेप होंगे. स्टेप 1 के अंदर आप जो है वो चेक करेंगे, डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस को, यानी H0 और HA, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका होगा सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर. और स्टेप 2 आपके पास होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को फाइंड करने के लिए. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी आपके पास कोई, यानी अल्फा. और स्टेप 3 आपके पास होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. आप फाइंड करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो के बराबर होगी F इक्वल टू
इस केस में वो चेंज होगा फार्मूला S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। और फिर यहां से आगे आप या तो पी वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे या फिर आप जो है वो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे। और पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच दोनों जो है आपकी, उनके अंदर आप जो जो एरियाज फाइंड करेंगे वो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगे। द एरियाज विल बी कैलकुलेटेड बाय एफ टेबल। लेकिन रूल वही रहेगा पी वैल्यू के लिए, आपके पास जो पी की वैल्यू है वो रिजेक्शन के लिए अल्फा से छोटी होनी चाहिए। पी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर ऐसा है तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। ये पी वैल्यू के लिए होगा। और क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपके पास होगा, रिजेक्ट करेंगे आप एच नॉट को अगर एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ अल्फा से। ओके, सो इसके बाद फिर आपके पास होगी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। So we didn't switch. Okay. ओके, सो अब हमारे पास ये है कि हम जो है वो अपर टेल टेस्ट और लोअर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, इनके एग्जांपल्स करेंगे फॉर दिस टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस के केस के लिए। अपर टेल टेस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले आप जो है वो डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस को, स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी, कोई अल्फा की वैल्यू। स्टेप 3 के अंदर आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप फाइंड करेंगे और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इससे फाइंड किए जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो पी वैल्यू है वो आपकी अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच होगी आपके पास, या फिर आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होगी। पी वैल्यू अप्रोच के लिए ये होगा, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए ये रिजेक्शन रूल होगा, वही जिस तरह से पहले होता है। और पी वैल्यू और दोनों क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच दोनों के अंदर आप टेबल्स जो यूज करेंगे वो आपके होंगे फ्रॉम एफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो एरियाज या वैल्यूज, ये जो एफ अल्फा या यहाँ पर पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आप एफ टेबल से, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइंड करेंगे। इसके बाद आपके पास टू टेल टेस्ट होगा, वो इसी के लिए। उसके अंदर भी पहला स्टेप आपका वही होगा जैसे होता है एज यूजुअल, यू विल डेवलप हाइपोथेसिस, बहुत null hypothesis sigma 1 square to be sigma 2 square और h alternative sigma 1 square not equal to sigma 2 square। that will be your step 1। and step 2 के अंदर वही आपके पास level of significance होगी, and that is alpha। और step 3 आपके पास होगा, that is test statistic find करना। और उसका जो फार्मूला है वो होगा F इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। और टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करने के बाद फिर आपके पास आइदर यू विल यूज पी वैल्यू अप्रोच और यू विल यूज क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। या पी वैल्यू अप्रोच होगी आपके पास या आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होगी। तो जो पी वैल्यू अप्रोच है उसके अंदर आपके पास रिजेक्शन रूल होगा, आप रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को अगर पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है। पी क्या होता है, पी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सच दैट एफ इज ग्रेटर देन मे बी इक्वल टू एफ अल्फा। और आपके पास यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर भी रिजेक्शन रूल जो होगा, आप जो है वो रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को अगर आपका एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है एफ अल्फा बाय 2 के, यानी कि दिस वे। अगर ऐसा है तो आप रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नो। सो लेट्स डू वन एग्जांपल इन द नेक्स्ट वीडियो।
I'll share link again.